The government and the ruling party coined the term Pappu. You use it to denigrate, to signify extreme incompetence. Let me use the next few minutes to point out what the data, the statistics tell us as to who the actual Pappu really is. Is this the sign of a healthy economic environment, of a healthy tax environment? Who's the Pappu now? Is the ED's job only to harass people, or is it to actually track down and catch the perpetrators of financial crimes? What is this level of incompetence? Who's the Pappu now? Cash is still king. Demonetization did not achieve any of the 3 targets. Who's the Pappu now? You just went to election in 3 states. With all your might, with all your resources, you won in only 1. The president of the ruling party could not hold on to his own home state. Who's the Pappu now? You do not have the moral clarity to call out right from wrong. Who's the Pappu now? People tell me to keep quiet, to make peace in the name of soft Hindutva. I am Hindu, but I refuse to play soft anything. What this country needs is an elected government which plays hard morality, hard legality, and hard economics. No soft anything. I urge this government and the finance minister to take control of the economy. And I urge the people of India to take control over who they give the reins of this country to. सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई. सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी. This is a question that India needs to answer. There was this question of where is the Pappu, who's the Pappu, who's the Pappu. Actually, if only honourable member looks back into her own backyard, she'll find Pappu in West Bengal. So there's no doubt, where there are wonderful schemes which can benefit common people, West Bengal sits over it, doesn't distribute it. You don't need to search anywhere else for Pappu. But even worse, sir, even worse is this point. Matches kiske haath mein hai? This is really, I don't want to elaborate too much on it because it probably just wanted to spice the questions and the issues she raised, about which I think in different ways I've tried answering. But it's a matter of concern, sir, because kisne diya matches is not the issue, because democracy, people elect the leader and give it to the concerned. We don't need to undermine the people by saying kisne diya inke haath mein. Janta ne diya matches. But किसके हाथ में मैचेस कैसे उपयोग में आता है वही है इंपॉर्टेंट. मैचेस किसके हाथ में कैसे उपयोग में आया. Recently you had, at least BJP had a fantastic victory in Gujarat. Post election, sir, what was the environment there? Peacefully the new government came to power, was sworn in. Whereas compare it with what happened in West Bengal post the state government election, matches किसके हाथ में कैसे उपयोग में आया, कैसे उपयोग में आया, वो है प्रश्न वो है. पूरा बंगाल को दिला दिया माचिस किसके हाथ में. हमारे हाथ में जब माचिस थी, हमने उज्ज्वला दिया, हमने उजाला दिया, हमने पीएम किसान दिया, हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाए. जब आपके हाथ में आया माचिस, आर्सन हुआ, लूटिंग हुआ, रेप हुआ, हमारे कार्यकर्ता के घर जला दिया, और ऊपर से एक केंद्र मंत्री MOS मुरलीधरन, उनके गाड़ी के ऊपर इतना अटैक हुआ, सेंट्रल मंत्री तक सेफ नहीं था पोस्ट इलेक्शन. सो मैचेस जेपी नड्डा जी के गाड़ी तो कैंपेन के दौरान, मुरली जी के गाड़ी, MOS के गाड़ी पोस्ट इलेक्शन. सो मैचेस किसके हाथ में कैसे काम आया वो हम समझना चाहिए सर, ऐसे नहीं है बात. सर लास्टली सर, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सर,
आदिर जी बात करते हैं रिपो रेट। मैं तो मेरा कर्तव्य सर लीडर को जवाब देना, उससे मैं बंद करती हूँ मेरा। सॉरी मेरा गलती है सर, सॉरी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं है, मगर आदिर रंजन जी हमारे लीडर है, इसीलिए सर रिपो रेट बहुत हाई है। इट इज इम्पैक्टिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ये है उनकी कंसर्न। और उसके सामने उससे पहले ये भी बताया गया इंडिया इज विटनेसिंग स्टैगफ्लेशन। मैं बहुत ही हम्बली सबमिट करना चाह रही हूँ सर, लीडर है, बहुत वरिष्ठ है, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है और बंगाल में बहुत ही बड़ा है। सो आई हम्बली वांट टू सबमिट सर, हम्बली वांट टू से सर, स्टैगफ्लेशन होता है जब इकोनॉमी में स्लो डाउन है और हाई इन्फ्लेशन भी है, वो है स्टैगफ्लेशन। भारत में आज डेटा आया, कल भी डेटा आया, मैंने बोल रही हूं CPI 5.88 के नीचे आ गया है, WPI तो 21 मंथ्स में सबसे कम में आ गया है। सो इन्फ्लेशन हाई नहीं है, वो एक बात है। सेकंड, स्लो डाउन नहीं है भैया, पूरे हमारे देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है सर, कैसे स्लो डाउन? सो स्टैगफ्लेशन के बाद जो आदिर जी उठाया वो बिल्कुल सही नहीं है। फास्टेस्ट ग्रोइंग, नो इन्फ्लेशन, आई मीन लोअर इन्फ्लेशन विद इन द फोरबेरेंस लिमिट इन्फ्लेशन। सो ये एक स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। लास्ट में सर रेपो रेट, उसके बारे में बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं। रेपो रेट has been very high, historically high during UPA 1 and UPA 2। ये हम रिकॉग्नाइज, हाँ नहीं मेरा जमाना के बात ही कर रही हूँ, सुन लो, सुनिए सर। हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप सर आदिर जी 1 मिनट पहले हमसे ये बात बोले कि आप सीख लेना चाहिए, उनसे मैं सीख रही हूँ सर। और उनके रिपो रेट 8% था ड्यूरिंग 2014, अभी 6.25% है सर रिपो रेट। तब तो 8% था, अभी 6.25 है। 28% हायर रेट्स वर देयर ड्यूरिंग UPA। दूसरा, होम लोन रेट्स वे 10% टुडे, whereas it was उनके समय पर, टुडे इट इज ओनली 8.40। रिपो रेट के ऊपर चिंता ना करें आदिर जी, आपके सारे मेंबर चिंता ठीक है सर। नहीं उसका जवाब मैं दे चुके सर। के बारे में जरूर चिंता करते हैं। आप किसी बाहर वाले को बेकार छोटे मध्यम उद्योगपति को पूछ लीजिए, छोटे बैंक से जो लोन लेके काम करता है पूछ लीजिए, कोई सरकार जिन्होंने अपना मकान बनाया बैंक से उधार करके पूछ लीजिए। ठीक है सर। लास्ट वन लाइन सर, चाइना के साथ हमारे ट्रेड डेफिसिट के ऊपर बहुत सारे लोग चिंता जताए, उसमें मैं बात बोलना चाहिए। ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ 2004-05 में 1.48 बिलियन ही था, और वो 2013-14 के अंदर 36.21 बिलियन US$ हुआ, विच इज 2000% से ज्यादा इंक्रीज हुआ तक। मगर अब ट्रेड डेफिसिट विद चाइना has only increased by about 100%, which is 73.31 billion in 21-22। इसीलिए ट्रेड डेफिसिट चाइना के खिलाफ का वाले बात भी मैं डेटा के साथ आपके सामने ही रखना चाह रही हूँ। मुझे जवाब देने के लिए मौका दिया, धन्यवाद। अब मैं वर्ष 20 वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।